میں مجرم ہوں. رسول گرامی قدر فرماتے ہیں مولا علی کی طرف بات منسوب ہے کیونکہ سارا کلام مولا علی کا ہے اور علی نے محمد کی زبان چوسی ہے. محمد کے لعاب میں اتنا اثر ہے کہ لعاب چوسنے والا علی بنتا ہے. سمجھیے گا اس بات کو. سامعین گرامی قدر رسول گرامی قدر کا شاگرد علی ہے. مولا علی ناج البلاغہ میں فرماتے ہیں کان اللہ لم یکن معہ شیء. ایک ایسا وقت تھا جب ذات احدیت تھی اور عدم کا سناٹا تھا. ذات احدیت تھی اور سکوت تھا. اللہ نے اس عدم کے سناٹے کو توڑنے کے لیے ہم پنجتن کا نور خلق کیا. ہمارا نور خلق ہوا. رکعن و سجدہ ہم رکوع کرتے رہے, سجدے کرتے رہے. آدم, ملائکہ, جبرائیل, اسرائیل ہماری عبادت کو دیکھ کے عابد بنے. جبریل نے آداب بندگی ہم سے سیکھے. میکائیل نے آداب بندگی ہم سے سیکھی. کیوں علی استاد جبریل ہے؟ کیوں علی استاد میکائیل ہے؟ ملائکہ نے عبادت کا سلیقہ علی سے سیکھا. سامعین گرامی قدر تو مجھے کہنے دو, علی کو استاد وہی کہے جو آداب بندگی علی سے سیکھتا ہو. تم بھی اگر علی کو مولا اور استاد کہنا چاہتے ہو, آداب بندگی علی سے سیکھو. اب شاگرد اچھا وہی ہوتا ہے جو استاد کا احترام کرے. ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے استاد محترم, جملہ ذہن میں آ گیا, خدا نے اپنی حفظ و امان میں رکھا آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی دامت برکاتہ العالیہ کا. ان کا ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا. وہ کہا کرتے تھے مجھے حیرت ہوتی ہے اس بندے پہ کہ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ کعبہ کس منہ سے منہ کرتا ہے. وہ کعبہ کس منہ سے منہ کرتا ہے. اب ہمیں اپنے استاد کا احترام اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں اور ہمارا ضمیر ہمیں اجازت نہیں دیتا. اگر کوئی ان کا مخالف ہو ہم اس کے ساتھ پیار سے نہیں ملتے. اور شاگردی کا حق بھی یہی بنتا ہے. کوئی استاد کو برا کہے تو ہمارے چہرے پہ کیا آ جاتا ہے؟ غصہ آتا ہے. آہستہ سے بات کہوں تو آپ کے معیار کو زندگی میں کبھی پھراؤں تو اور بلند پاؤں. استاد کے دشمن کو جب دیکھا جائے تو چہرہ بدل جاتا ہے. اب پتہ چلا اسرائیل جب روح قبض کرنے آتا ہے تو کوئی چہروں کو دیکھ کے اس کا رنگ کیوں بدل جاتا ہے. جیسے ہی اپنے استاد علی کو دشمن کو دیکھتا ہے قسم میں آ کے کہتے ہیں جب تیرے دل میں علی کی محبت نہ تھی پھر بتا یہ نماز کیوں پڑھتا تھا, روزہ کیوں رکھتا تھا. حق یہی بنتا ہے. ہمیں بھی آداب بندگی, آداب رکوع و سجود کس سے سیکھنا ہے؟ علی سے سیکھنا ہے. علی کی ذات ایسی ہے جسے چھوڑا جائے گا تو معاشر میں کچھ کام نہ آئے گا. اور یہ نہ کہا کرو بس آخری جملہ آپ کی زحمتوں کو تمام کرو, جشن ہے میں تب مجبور ہوں اس طرح کی بات پہ. آپ یقیناً لطف لے رہے ہیں. اور میں کبھی ممبر پہ سوچتا ہوں ایسی بات نہ کروں, لیکن جب میں رسول کی حدیث پڑھتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں کروں, کیونکہ حق بنتا ہے علی کے دشمن کو ایسا کہا جائے. کا اتفاق تھا علی کی ماں کعبے کی طرف آئی, یہ اتفاق ہوا. دیوار کعبہ گر گئی, علی کی ماں اندر چلی گئی. یہ اتفاق تھا. بچوں کو یہ جو شیعہ سنی حضرات ہیں نا بڑے چالاک ہیں, کیونکہ یہ دونوں علی کے عاشق ہیں. یہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا ان کی باتوں میں نہ آنا, یہ دیوار کعبہ کمزور تھی, بس گری, اندر چلی گئی. میں نے کہا اتفاق یہ تو ہو سکتا ہے دیوار گر جائے, لیکن دیوار کا اٹھنا اتفاق نہیں ہے. لیکن چلو ایک لمحے کے لیے ہم جھگڑنے والے لوگ نہیں ہیں. جشن کا معیار دیکھنا چاہتا ہوں اور پھر آپ کی سماعتوں کی بیداری کا طالب ہوں. میں لڑنے والا بندہ نہیں ہوں, علی کا چاہنے والا ہوں. ہم تو قاتلوں کو شربت پلانے والے ہیں. کوئی میرا مہمان بیٹھا ہے تو پھر میں دستہ اس سے گزارش کرنے لگا ہوں. میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ علی کی ماں اتفاقاً کعبے میں آ گئی, لیکن پھر سنیے یہ اتفاق کب کب اور کہاں کہاں ہوا.
इसको तो आपने इत्तेफाक कह लिया, मैं मानता हूं और भी बड़े इत्तेफाक हुए हैं। अली की मां काबे की जानिब आ गई, ये भी इत्तेफाक था, और इत्तेफाक से दीवार काबा में दर बना, ये भी इत्तेफाक था। वो दर फिर मिल गया, ये भी इत्तेफाक था। 3 दिन अली की मां घर में बैठी रही अल्लाह के, ये भी इत्तेफाक था। 3 दिन आसमान से खाना पक के आता रहा, ये भी इत्तेफाक था। 3 दिन अबू तालिब बड़ा मुतमईन होकर अपने घर बैठा रहा, ये भी इत्तेफाक था। 3 दिनों बाद फिर वो दीवार काबा में दर बना, ये भी इत्तेफाक था। 3 दिनों के बाद नबी ने अली को हाथों पे उठाया, ये भी इत्तेफाक था। नबी ने अली को ज़बान चुसाई का, ये भी इत्तेफाक था। अली ने नबी को अपना वसी बनाया, ये भी इत्तेफाक था। अली ने झूले में इधर को चीर दिया, चलो ये भी इत्तेफाक था। नबी अली को घर लेके आए, ये भी इत्तेफाक था। झूले में अली अल्लाह से बातें करता था, क्या ये भी इत्तेफाक था। नबी का साया अली बन के रहा, क्या ये भी इत्तेफाक था। नबी ने अली को कह दिया तू यासूबुद्दीन है, क्या ये भी इत्तेफाक था। नबी ने अली को काम था मिन्नी पे मंजिलते हारून मिन मूसा, क्या ये भी इत्तेफाक था। अली ने नबी को काम था साहिब लिवाई या अली, क्या ये भी इत्तेफाक था। नबी ने अली को काम था तकजीदाइनी या अली, क्या ये भी इत्तेफाक था। नबी ने अली को काम था साहिब लिवाई, क्या ये भी इत्तेफाक था। नबी ने अली को कहा था मुहाफिज सिर्री, क्या ये भी इत्तेफाक था। नबी ने अली का हाथ उठाया मन कुंतो का, ये भी इत्तेफाक था। नबी अली को मैदान में लेके जाते रहे, ये भी इत्तेफाक था। अली नबी का साया बन के रहा, ये भी इत्तेफाक था। अली नबी का मुहाफिज बन के रहा, ये भी इत्तेफाक था। अली वसीले हारून बना, ये भी इत्तेफाक था। अली कसीमुल जन्नत वन्नार बना, क्या ये भी इत्तेफाक था। इत्तेफाक था अली यासूबुल मुस्लिमीन बनना, इत्तेफाक था इमामुल मुत्तकीन बनना, इत्तेफाक था कातिलुन नाकिसीन बना, इत्तेफाक था कातिलुल मारिकीन बना। इत्तेफाक से अली ने सूरज को वापस पलटा लिया, इत्तेफाक से अली ने चांद को 2 हिस्सों में बुलंद कर दिया। इत्तेफाक था नबी ने आखिरी हज पे जाने का इरादा किया, इत्तेफाक से आगे वालों को पीछे बुलाया, इत्तेफाक से पीछे वालों को आगे बुलाया, इत्तेफाक से दाएं वालों को बाएं बुलाया, इत्तेफाक से बाएं वालों को दाएं बुलाया। इत्तेफाक से किसी सहाबी को कहा पालान का मिंबर लगाओ, इत्तेफाक से मिंबर लग गया। इत्तेफाक से नबी मिंबर पे आ गए, इत्तेफाक से अली को करीब बुलाया, इत्तेफाक से अली भी करीब आ गए। इत्तेफाक से नबी ने अली का हाथ पकड़ा, इत्तेफाक से लोगों की आंखें हैरत से फटती रही। इत्तेफाक से नबी ने अली का हाथ उठा के सहाबा के मजमे को देख के कहा मन कुंत मौला हो फहाजा अली जुन मौला। और ये इत्तेफाक था। जुमला सुनिएगा, जुमला सुनिएगा। अली ने नबी ने कहा मन कुंत मौला हो फहाजा अली जुन मौला, ये भी इत्तेफाक था। और इत्तेफाक से मजमे में से एक बंदा उठ के कहता रहा बखिन बखिन लगा यबना अबी तालिब, ये भी इत्तेफाक था। जुमला सुनिएगा, अगर ये सारा इत्तेफाक है तो मैं आज इस मजलिस में कहना चाहता हूँ ज़माने वालों, ये सारी बातें इत्तेफाक हो सकती है, सारी बातें इत्तेफाक हो सकती है, लेकिन एक बात तू भी मान, ये सारा इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अली का दुश्मन इत्तेफाकन भी हलाली नहीं हो सकता। और अपने हुसैनी और अलवी जज्बे को बेदार रखना, इसी जुमले पे अपने जश्न का इख्तिताम कर रहा हूँ। सामीने गिरामी कदर, जहां तक भाग सकते हो भाग लो, अली तुम्हारे पीछे होगा। तुम मस्जिद में जाओगे तो अली का जाना याद आएगा, तुम काबे में आओगे तो अली का आना याद आएगा, तुम जिहाद में जाओगे तो अली की जुल्फ़िकार नजर आएगी, तुम अपने घर में जाओगे तो बखिन बखिन की सदाएं याद आएगी। हर जगह पे अली है, तो मुझे कहने दो मस्जिद में है अली तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह है दोषे पैगंबर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली। हर जा अली 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 मिलेगा, ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम में जाइए।
भरावो उठी के जड़ी तैयार की हुई हो चाहो शाह साहब का अपना किबला साहब को दुआ भी मंगवेंदे हैं और अली की मोहब्बत जवान कर देती है अच्छा बैठ के जेड़ा भी नसीब दा बिल भी है ओ मुई मिठा करने आज दी रात दा ते बने बच्चे सारे मेरी औरतें च भेज दे कोई नाल थी वा शरीफ आदमी बैठा क्या उठो शाबाश नासिर उठो बाबा क्या सारे आओ सारी सलावत पर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। शाह साहब तो आपने शाह साहब नकाय साहब दुआ मांगेंगे आप सबके लिए आज रात के सदके हम सब मुसलमानों के हम मोमिनीन के अहले इस्लाम के जो दिली नेक हाजात हैं उनके लिए अल्लाह उन्हें पूरा करे। और हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, ख्वाहिश क्या है, जरूरत है। बारगाह को तामीर शुरू की हुई है, अभी फाउंडेशन में है। इंशाल्लाह किबला दुआ करेंगे हमारे लिए भी, हमारी इस मिशन के लिए भी। आप आमीन कहें, नकाश साहब दुआ मांगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आराम से जो न्याज आ रही है आराम से दुआ है कि खुदावंद मन्नान आपकी बारगाह में आना अपनी निगाह मुकद्दस में कबूल फरमाए। परवरदिगार दुआ है आज की शब के सदके हमारे गुनाह ने कबीरा और सगीरा माफ़ फरमा दे। परवरदिगार हमारे वालिदैन के गुनाह ने कबीरा और सगीरा माफ़ फरमा दे। परवरदिगार वो असातिज़ा जिन्होंने हम सब की तरबियत की उनके गुनाह ने कबीरा और सगीरा माफ़ फरमा। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जिस मोमिन ने जिस लिहाज से शिरकत की कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार हमारे दिलों को अहले बैत के मोहब्बत से मज़ीद रोशन फरमा। परवरदिगार जो मोमिन बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा, जिनको औलादी है सीरत आइम्मा पे चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार जो मोमिन इस महफिल में तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती दूर फरमा। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद वाली जो मोमिन मकरूज़ हैं उनका कर्ज गैब से अदा फरमा। परवरदिगार जो मोमिन सफ़र में उनका सफ़र बेखतर फरमा। परवरदिगार जिस मोमिन ने इस न्याज में पका के बना के ये खिला के हिस्सा ले रहे हैं, ये अली की मोहब्बत में हिस्सा ले रहे हैं, इनकी मोहब्बत को कबूल फरमा। और वाक़यान ये मैं दिल की अथाह गहराइयों से कह रहा हूँ, मैं अक्सर कहा करता हूँ, मेरा ये अकीदा है कि तस्बीह के जिस तरह दाने फिरते रहते हैं, पहला दाना, दूसरा, तीसरा, चौथा, आदम से लेकर क़यामत तक हम सारे एक तस्बीह में परोए हुए हैं। कभी हमारा दादा, कभी बाबा, कभी हम, कभी हमारी नस्लें, ये सारी मिट जाएंगी। आज हमारे दादा परदादा नहीं है, लेकिन उनके लगाए हुए ये पौधे जो मोहब्बत अली में परवान चढ़ रहे हैं, ये उनकी बका और नजात का जिम्मा है। परवरदिगार उन लोगों को जिस बारगाह की तामीर के लिए जिस लिहाज से भी हिस्सा ले रहे हैं, अंजुमन और जिन ज़करिया साहब के लिए, साकी साहब के लिए, जितने अहबाब मोमिनीन जितने बैठे, मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं फिर कहता हूँ मेरा जानना न जानना, जी मेरा जानना न जानना बराबर है। वक्त का इमाम जानता है, खुदा वही आपकी आवाज़ों को सुनवाए। परवरदिगार से दुआ है कि जितने अंजुमन के हजरात हैं उनकी बारगाह में ड्यूटी कबूल फरमाए। परवरदिगार जितने मोमिन इस महफिल में शरीक अज़ा हैं, परवरदिगार फिर वही कहता हूँ कि मैं नहीं जानता इनके दिलों में क्या क्या हाजत है। अगर कोई बीमार है तो शिफाए कामला दे। परवरदिगार जो मोमिन तंगदस्त है उसकी तंगदस्ती दूर फरमा, खुसूसन इनके घरों पे अपनी अर्ज़ी और समावी तमाम तकालीफ को दूर फरमा। परवरदिगार अगर ये दुनिया से अगले बरस चले जाएं, इनकी कब्र में मौला अली का ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार हमें शिफाअत हुसैन नसीब फरमा। परवरदिगार जो मोमिन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उन्हें जवारे मासूमीन में जगह अता फरमा। परवरदिगार हमारी सारों दुआओं की दुआ का मरकज़ हादी ज़मां का जल्द दूर फरमा। हमें उनके सच्चे अंसारों मुहिबीन में शुमार फरमा। हमें अपने आका के कदमों में जानिसार करने की तौफीक अता फरमा। बहुत सारे लोगों ने मेरे ज़िम्मे दुआ औलाद नरीना के लिए भी लगाया है, और मैं आज की शब परवरदिगार को बसदका मोहम्मद वाले मोहम्मद, बसदका हज़रत अली असगर, बसदका बीबी रबाब, बसदका जनाब सैयदा ये वास्ता दे के कहता हूँ कि बीबी, हम अपनी नस्लें बढ़ाने के लिए औलाद नहीं मांग रहे, हम ये चाहते हैं कि तेरा जिक्र और अज़ादारी हमारी नस्लों में कायम रहे, जो हमारी नजात का सबब बने। हमें हमारा बेटा समझ के नहीं, अपना अज़ादार समझ के साले औलाद नरीना अता फरमा। परवरदिगार जिन मोमिनों ने इनके ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, नाम न ले पाया, फिर कहता हूँ कि वक्त का इमाम आपका जानता है,
وہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے. اگر ہم امام کے دور سے پہلے دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں دوبارہ امام کے قدموں میں جانے سار کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پاس ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمارے اعمال نہیں ہیں, ہمارا کردار نہیں ہے, ہمارے پاس وہ فکر نہیں ہے, سوچ نہیں ہے کہ دعا قبول ہو. ہاں پروردگار, ایک چیز ہے جس سے دعا ضرور قبول ہوگی, بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا والسر المستودع فیہا. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے, میری دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو دعائیں ذمہ لگائی ہیں, بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے.